एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइंग एट नेशन नेक्स्ट। आज हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया और पता करने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में हम सबको 2021 में कोविड-19 वैक्सीन मिल पाएगी। The first case of COVID-19 was reported in India on 30th January 2020 in Kerala. 1 year after that, इंडिया में आज तक के 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 से अफेक्ट हो चुके हैं और 1,52,000 से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। पहला केस रिपोर्ट होने के 1 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत इंडिया में हो चुकी है और दुनिया की बाकी कंट्रीज भी अपने सिटीजन्स को वैक्सीनेट करने की तैयारी कर रही है। Even as the world prepares itself for the massive COVID-19 vaccination drives, India may be at an advantage because after all, India is the world's leading vaccine manufacturer. This fact may give India better access to vaccines in comparison with other countries of the world. India's Serum Institute of India, which has developed the COVID-19 vaccine Covishield along with Oxford University and AstraZeneca, is alone a producer of 1.5 billion doses of different vaccines of different diseases every year. Also, Bharat Biotech's vaccine Covaxin has also been approved by the DCGI in India. आमतौर पे एक वैक्सीन बनने के लिए 6 या 7 साल का समय लगता है। ये कोविड-19 वैक्सीन दुनिया की ऐसी पहली वैक्सीन है जो 1 साल में बनाई गई है एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया दैट इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक हैव मेड द वैक्सीन। अब जब वैक्सीन आ गई है तो सबको ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक खत्म हो जाएगा और सबको वैक्सीन 2021 में मिल जाएगी। इंडिया की वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन क्या हम लोग सक्षम हैं कि इस वैक्सीन को 2021 में सब तक के पहुंचा पाए? शायद नहीं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वैक्सीन्स इन इंडिया। Today at Nation Next, we will list out the problems that India may face when it comes to the distribution of vaccine in India. इंडिया के वैक्सीनेशन ड्राइव के फेज 1 के तहत 30 करोड़ पीपल विल बी वैक्सीनेटेड बाय अगस्त 2021। इन 30 करोड़ लोगों में सबसे पहले आएंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स, विच इंक्लूड्स पुलिस पर्सनल एंड हॉस्पिटल स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स, ऐसे कई सारे लोग जो हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उसके बाद पीपल ओवर द एज ऑफ 50, इनको ये वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद पीपल अंडर 50 who have comorbidities related to heart, diabetes, liver disease or other diseases which put them at a greater risk of contracting COVID-19, इन सारे लोगों को सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी। इन 30 करोड़ लोगों को 60 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज जो वैक्सीन अवेलेबल है those are to be given in a span of 28 days. But will India be able to roll out 60 crore vaccine doses in the next 8 months? Well, the data shows that we might not be able to, and if we really want to, we might have to buckle up. The first and the most important problem in achieving the target of vaccinating 30 crore Indians by August 2021 is the shortage of cold chain infrastructure in the country. एक रिपोर्ट के हिसाब से, if India really wants to roll out 60 crore COVID-19 vaccine doses by August 2021, it will have to extensively expand its existing cold chain storage capacity. क्योंकि इंडिया में ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे ये कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लिमिटेड है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि while the COVID-19 vaccination drive is India's first adult vaccination program, इंडिया में चाइल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर डिफरेंट डिसीजेस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस मेनी इयर्स। इसकी वजह से जो एक वैक्सीन सप्लाई चेन है ये पहले से इंडिया में बना हुआ है। India plans to roll out 60 crore doses by August 2021, but as per statistics, the current distribution system might be able to just roll out 36 crore doses in the next 8 months. Out of these 36 crore doses, 20 crore doses will be supplied by the private sector and 16 crore doses will be supplied by the government. Also, it is worth pointing out that these estimates are based on the assumption that ये COVID-19 vaccination drive है, ये existing vaccination के drive चलेगा। मतलब जो चाइल्ड वैक्सीनेशन ड्राइव है या जो दूसरी वैक्सीनेशन ड्राइव जो देश में पहले से ही चली आ रही है, उनको डिस्टर्ब किए बिना कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा। Now let's try to understand the vaccine distribution system in India. India's vaccination distribution network operates through 4 GMSDs, मतलब कि Government Medical Store Depots. These GMSDs are situated in Karnal, Mumbai, Chennai and Kolkata. ये जो GMSDs है ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स से वैक्सीन खरीदती है। इसके बाद 53 ऐसे स्टेट वैक्सीन स्टोर्स है जो आइदर GMSD से वैक्सीन खरीदते हैं या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली वैक्सीन खरीदते हैं। इसके बाद ये वैक्सीन GMSD से और स्टेट वैक्सीन स्टोर से इंसुलेटेड वैन्स में पूरे देश भर में भेजी जाती है। So here's how the distribution system works. वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू वैक्सीन जाती है प्राइमरी स्टोर में।
प्राइमरी स्टोर्स कंसिस्ट ऑफ GMSDs एंड स्टेट वैक्सीन स्टोर्स। GMSDs और स्टेट वैक्सीन स्टोर से वैक्सीन जाती है रीजनल वैक्सीन स्टोर में, उसके बाद रीजनल वैक्सीन स्टोर से वैक्सीन जाती है डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में, फिर वहां से वैक्सीन जाती है कम्युनिटी हेल्थ केयर कोल्ड चेन पॉइंट्स, प्राइमरी हेल्थ केयर कोल्ड चेन पॉइंट्स और अर्बन हेल्थ केयर कोल्ड चेन पॉइंट्स में। वहां से ये वैक्सीन जाती है सब सेंटर पॉइंट्स पे और फिर आखिर में ये वैक्सीन पहुंचती है कंज्यूमर्स तक के। Needless to say that during the transport of the vaccine from one point to the other, the vaccines have to be kept in a refrigerated environment with temperatures ranging from 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius. Apart from the vaccine distribution to target groups, many health workers are also needed in the process of vaccination. इसका मतलब है दो चीजों की सख्त जरूरत है, एक तो कोल्ड चेन स्टोरेज कैपेसिटी की और बड़ी तादाद में हेल्थ वर्कर्स की। Now India currently has 27,000 cold chain points, 76,000 cold chain equipment, 700 refrigerated vans, 55,000 cold chain handlers and 2.5 million health workers as part of its vaccine logistic network. ये नंबर हर महीने में कम है अगर फेज 1 वैक्सीनेशन को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो। अगर अगस्त 2021 तक के इंडिया को 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, 60 करोड़ डोजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इंडिया के पब्लिक सेक्टर को अपनी कैपेसिटी, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी 2 से 3 गुना बढ़ानी होगी। अब ये तो हुई एक प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज रिलेटेड विद एक्जिस्टिंग वैक्सीन सप्लाई चेन इन इंडिया। Apart from the shortage of cold chain infrastructure in India, the gaps in the existing supply chain is a big problem when it comes to COVID-19 vaccination in India. चलिए आपको हम इस प्रॉब्लम के बारे में भी बताते हैं। Over the years, India's vaccine management system has improved because of a real-time supply management system known as the EVIN. EVIN का मतलब है Electronic Vaccine Intelligence Network। लेकिन EVIN है क्या? सरल भाषा में अगर कहें तो EVIN एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वैक्सीन के स्टॉक्स को डिजिटाइज करती है एंड इट मॉनिटर्स द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन थ्रू अ स्मार्टफोन एप्लीकेशन। EVIN पहली बार इंडिया में 2015 में 12 स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया था। अगस्त 2020 तक के 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंडिया में EVIN इंप्लीमेंट किया जा चुका है, लेकिन शायद ये इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री की 2017-18 की एक रिपोर्ट के अनुसार जब 12 स्टेट्स में 230 EVIN कोल्ड चेन पॉइंट्स का ऑडिट किया गया तो यहाँ पे पता चला कि इसमें से कई सारे कोल्ड चेन पॉइंट्स पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऑडिट के दौरान पता चला कि 230 EVIN कोल्ड चेन पॉइंट्स में से 26% जो कोल्ड चेन पॉइंट्स थे इसमें से वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। 46 EVIN कोल्ड चेन पॉइंट्स ऐसे थे जहां पे वैक्सीन वेस्ट हो चुकी थी। इसके अलावा डेटा एक्यूरेसी बिटवीन द फिजिकल काउंट एंड द रिकॉर्ड ऑफ वैक्सीन आल्सो पोज्ड अ पोटेंशियल थ्रेट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ सप्लाई चेन। एक और चीज है, जब 2018 में WHO यूनिसेफ ने इफेक्टिव वैक्सीन मैनेजमेंट पे एक ग्लोबल एनालिसिस किया तो ये पाया गया दैट इंडिया रैंक्ड विद इन द 51 to 75 percentile range among 89 countries. India's performance was relatively poor when it came to following the required vaccine arrival procedures and using the management information system to estimate the demand of vaccines, syringes and other vaccination items. एक और प्रॉब्लम है when it comes to the distribution of COVID-19 vaccine in India. ये प्रॉब्लम है the disparity in distribution of cold chain points across India. इसका मतलब अलग-अलग स्टेट्स में जो कोल्ड चेन पॉइंट्स है उनमें उनके नंबर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में 4 कोल्ड चेन पॉइंट्स है जो कि 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इसके मुकाबले झारखंड में सिर्फ 1 कोल्ड चेन पॉइंट है 1 लाख लोगों के लिए। झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है। एक्सपर्ट्स की माने तो डिफरेंस दूर करना बहुत मुश्किल है। एक रिपोर्ट के हिसाब से झारखंड ने अब 30 कोल्ड चेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं टू एक्सपैंड इट्स वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। झारखंड ने सेंट्रल गवर्नमेंट से आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स की भी मांग की है। सरप्राइजिंग बात यह है दैट इस एक्सपेंशन के बावजूद स्टेट्स लाइक झारखंड विल स्टिल लैग बिहाइंड गुजरात एंड विल हैव टू मैनेज विद देयर ओन लिमिटेड रिसोर्सेज। झारखंड की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड चेन पॉइंट्स की बहुत कमी है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भी अपनी कैपेसिटी को 2.5 गुना ज्यादा बढ़ाने की तैयारी में है। झारखंड की तरह उत्तर प्रदेश ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोल्ड चेन के लिए इक्विपमेंट की डिमांड की है। इन 3 प्रॉब्लम्स के अलावा इस वैक्सीनेशन ड्राइव की जो यूनिक रिक्वायरमेंट्स है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना, ये इंश्योर करना कि वो वैक्सीनेशन के दिन वैक्सीन लेने पहुंचे
और ये भी इंश्योर करना कि 1 मंथ के बाद उन्हें सेकेंड डोज मिले वैक्सीन का। इन सारी चीजों के लिए एक माइक्रो लेवल प्लानिंग की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी चैलेंजेस के अलावा 2 और इश्यूज हैं, जो कि है वैक्सीन अपटेक और मॉनिटरिंग। वैक्सीन अपटेक का मतलब ये है कि लोगों को कितना कॉन्फिडेंस है इस वैक्सीन में, क्या वो इस वैक्सीन को एक्सेप्ट करेंगे। अब मैंने आपसे जैसे कि पहले भी कहा था कि आम तौर पे एक वैक्सीन जो है 6 या 7 साल में बनती है, ये वैक्सीन 1 साल में बनी हुई है। तो हम लोग कई सारे लोगों को देखते हैं कि उन्हें इस वैक्सीन में कॉन्फिडेंस भी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी जो जांच है वो पूरी तरीके से नहीं हुई है, इसके ट्रायल्स पूरी तरीके से नहीं हुए, जो कि सही बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही वैक्सीन के ट्रायल एकदम पूरी तरीके से हुए हैं और उसी के बाद DCGI ने इसको अप्रूव किया है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस, वैक्सीन अपटेक और एक्सेप्टेंस जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वैक्सीनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव जो चला रही है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत सही तरीके से होना चाहिए। किसको वैक्सीन मिल रही है, किसको वैक्सीन दोबारा दी जानी है, किसको वैक्सीन की ज़रूरत है, ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत ही मुश्किल होगा। वैक्सीन अपटेक की एक बात करें तो एक और खबर अब जो आई है वो दिल्ली से आई है कि कुछ हेल्थ वर्कर्स ने दे हैव डिनाइड टू टेक द वैक्सीन। ये वैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक की वैक्सीन है। उन्होंने, उन डॉक्टर्स ने, उन हेल्थ वर्कर्स ने ये कहा है कि वो एक ऐसी वैक्सीन नहीं लेना चाहते जिसके ट्रायल्स खत्म भी नहीं हुए हैं। हालांकि कोवैक्सीन को, भारत बायोटेक के वैक्सीन को DCGI ने परमिशन दे दी है, अप्रूवल दे दिया है, लेकिन फिर भी ऐसी आशंकाएं लोगों के मन में है कि शायद वैक्सीन कैसा होगा, क्या होगा, उन्हें नहीं पता। तो ऐसी जो रूमर्स है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो एक रिक्वायरमेंट है, जो वो एक चैलेंज है जो गवर्नमेंट को डील करना पड़ेगा जिससे। इन सारे प्रॉब्लम्स के अलावा 2 ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट अगर कुछ लोगों से जब हमने बात की तो उनका प्रॉब्लम है, ये 2 प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये 2 प्रॉब्लम्स है VIP कल्चर एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ द वैक्सीन। VIP कल्चर मतलब जब आपने जो इंडिया में हम लोग देखते आए हैं, VIP कल्चर इंडिया में प्रिवेलेंट है, मतलब कि इन्फ्लुएंशियल लोग अपना क्लाउड इस्तेमाल करके कोई प्रिविलेज जल्दी लेना चाहते हैं। तो हो सकता है कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो कि जिनके लिए ये पॉसिबल है, वो लोग अपनी पहचान इस्तेमाल करें और वैक्सीन पहले लेने की कोशिश करें। इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकती है अगर एक्सपर्ट्स की माने तो। हम सब लोगों ने देखा है जब रेमडेसिविर बाजार में आई थी तो किस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग उसकी शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों ये थे वो सारे प्रॉब्लम्स जो इंडिया के कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ सकते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को अगर मद्देनजर रखें तो एक और चीज़ समझ में आती है कि इंडिया जैसे देश में इस प्रॉब्लम्स के अलावा काफ़ी और प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। देयर मे बी अप्स एंड डाउन्स, कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ और गलतियां होगी। तो कुल मिला के ऐसा हो सकता है कि वैक्सीन को आप तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। हो सकता है ये वैक्सीन 2021 तक के आप तक पहुंचे भी नहीं, या हो सकता है ये पहुंच भी जाए। तो दोस्तों आज हमने सिंप्लीफाई किया आपके लिए द चैलेंजेस दैट इंडिया माइट फेस व्हेन इट कम्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। आपके सामने हम लोग अगला एपिसोड सिंप्लीफाई का फिर वापस लेके आएंगे नेशन नेक्स्ट पर। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.